Morning, dear students, we are doing unit 3 section B, and yesterday we have done exercise B3, B4, B5, and today I will discuss the exercise B6. The first stanza of the poem says, two kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. So first stanza में ये लाइंस दी गई है जो मैंने पढ़ ली है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वार्ल एंड अ फाइट. ये कह रहे हैं कि क्या डिफरेंस है क्वार्ल और फाइट के बीच में. यू मस्ट कंसल्ट डिक्शनरी. इसके लिए आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना होगा. राइट योर आंसर इन द स्पेस गिवन बिलो. और आपको आंसर लिखना होगा यहाँ पर. तो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है. वैसे एक बार आप भी चेक करेंगे डिक्शनरी में क्या है. Quarrel means an angry verbal argument. An angry verbal argument. Okay. And what is the meaning of fight? Fight means hitting someone physically. Hitting someone physically. So quarrel का मतलब क्या होता है कि an angry verbal argument. और fighting means hitting someone physically. Now I will discuss the next exercise B7. Read the following. तो नीचे कुछ हमें दिया है, उसे हमें पढ़ना है फॉलोइंग्स को. As quiet as mice, as cold as snow. Do you think the above comparison are suitable? आपको लगता है जो कंपैरिजन किया गया है कि as quiet as mice and as cold as are cold जो है सुटेबल है एक दूसरे के साथ. The mice move around very quietly, don't they? जो माइस है बिल्कुल चुपचाप घूमते हैं चारों तरफ. क्या वह नहीं घूमते? The snow is always cold. जो स्नो होती है हमेशा कोल्ड होती है. Isn't it? क्या वह है? Similarly, the following comparison can also be made. तो वैसे ही जो कंपैरिजन किए हैं नीचे वो भी एक जैसे ही हैं. As quick as mice, as white as snow. जैसे सिमिलरिटी यहाँ पर है वैसे ही सिमिलरिटी नीचे भी है. ठीक है. एज क्विक एज माइस, माइस बहुत क्विक होता है ना. वैसे ही जो वाइट होती है स्नो, एज वाइट एज स्नो, जैसे कि वाइट जैसे कि स्नो. नाउ फाइंड सुटेबल कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग. तो मैंने कंपैरिजन यहाँ पर किए हैं, वैसे ही कंपैरिजन नीचे दिए गए हैं जो कि हमें करने हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एज सॉफ्ट एज कॉटन. तो हम लिखेंगे कॉटन यहाँ पर COTTON, कॉटन. सेकेंड वन, एज लाइट एज feather. FEATHER, feather. So as light as feather. Number third, as bright as sun. तो सबसे ब्राइट क्या होता है? सन होता है. तो as bright as sun. As fast as leopard. LEOPARD.
L-E-A-R-D, leopard. Fifth, as long as train. T-R-A-I-N, train. Okay, as long as train. As hard as rock. The last one is as black as coal. Dear student, here we have done exercise 7, comparison. Now we will take the next exercise, exercise B8. Read the poem again and find out at least 6 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम साउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे नाइट, फाइट, राइट. तो ऐसे ही पोएम को पढ़कर आपको दोबारा से 6 वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. ऑल्सो एट लीस्ट 1 मोर राइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच ऑफ दीज पेयर. और उसमें से एक हमें वहाँ से लेना है और एक हमें खुद ऐड करना है यहाँ पर. ठीक है. 1 एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन टू हेल्प यू. तो एक एग्जाम्पल उन्होंने हमारी हेल्प के लिए कर रखा है. तो राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम और एडिशनल वर्ड जो हमें ऐड करने हैं वो इससे लिखने हैं. ठीक है. फर्स्ट है नाइट फाइट, वो पोएम से है, और एडिशनल वर्ड है राइट. नाउ सेकंड इज डैट. So in the poem we have cat, dat, and additional word is rat. Now third one is fell, shell. And then additional word is bell. You can write your own choice of word. अपनी choice से भी कोई भी word लिख सकते हैं एडिशन में. ठीक है. Now fourth is broom. Then room. Room is, this word is given in the poem. Room. And additional word is zoom. Fifth is go. So snow, rhyming word from the poem, and the additional word is bow. Six, door and floor, and the additional word is soar. S-O-U-R, soar. Seventh is ice. So we write mice, ice, and rice. So dear student, here we have done exercise B8. Hope you have done it. Now I will discuss the value based question, exercise B9. Have you read and heard the story of the 2 cats and a monkey? क्या कभी आपने ये स्टोरी सुनी है या पढ़ी है? The 2 cats and the monkey फ्रॉम द पंचतंत्र. जो पंचतंत्र की बुक है उसमें से आपने कभी स्टोरी सुनी है या पढ़ी है? 1 स्टूडेंट कैन नरेट द स्टोरी इन द क्लास. तो एक बच्चा जो है क्लास के अंदर स्टोरी नरेट कर सकता है जिससे सुनी है. नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट अ फ्यू सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी एंड द पोएम टू लिटिल किटन. अब आपको क्या करना है कि स्टोरी सुनने के बाद जो पोएम है टू लिटिल किटन और जो 2 कैट्स एंड मंकी के बीच में सिमिलैरिटी, मतलब जो
दोनों में क्या चीज़ें समान हैं, ठीक है, और डिफरेंस मीन क्या अलग है, उसको हमें यहाँ लिखना है. सो व्हाट विल यू डू, दिस इज़ क्लास एक्टिविटी, एज वी ऑल नो वी आर एट होम. सो यू विल रीड दिस स्टोरी. आप किसी से ये स्टोरी सुन भी सकते हैं घर में, या आपके पास बुक है पंचतंत्र की, पढ़ भी सकते हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड में जो सिमिलैरिटी लिखेंगे और सेकंड साइड में डिफरेंस लिखेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.